Hi friends, so now the next chapter is marginal costing. We'll briefly revise all important points related to marginal costing now. Marginal costing is a decision-making technique where you take all your decisions based on the concept of marginal cost. Now your marginal cost means every cost incurred for an additional unit. Now whenever you produce anything additionally, and if you have enough spare capacity as per your infrastructure, for every additional unit, the only cost that gets incurred is variable cost. Fixed cost is never incurred for an additional unit. And in that case, all your decisions will be taken on the basis of the concept of marginal cost, variable cost. So whenever we discuss the profitability statement, it is always sales minus variable cost. We get some intermediate profit which is known as contribution. From that we subtract our fixed cost and we are left with profit. Am I right? So sales minus variable cost, sales minus variable cost will give me sales minus variable cost gives me contribution. Contribution minus fixed cost gives me profit. So whenever I produce any additional unit, since there is no additional fixed cost incurred, my contribution and my profit both are same and I can take all my decisions based on contribution. But this is for decision making. If they ask you to find out profit as per marginal costing, of course you will have to consider fixed cost. From contribution you will deduct fixed cost and you will be left with profit. Okay, so the first thing that I want to discuss with you is the absorption costing versus marginal costing concept. Now, whenever you are supposed to prepare a statement of profit as per absorption costing, whenever you want to prepare a statement of profit as per absorption costing, all you need is cost sheet format to be followed. If you recollect this question, we have simply prepared the cost sheet. If there is any under over absorption, you can adjust that under over absorption with the respective cost structure, or you can even adjust that in cost of sales at the end. Choice is yours. Prepare your cost sheet in a normal manner. But why actual cost? Why are you adjusting under over absorption? See guys, you are preparing statement of profit at the end of the year. That means you want profit at the end of the year. Your profit at the end of the year has to be your actual profit. And your actual profit will always be an outcome of actual cost structure and not standard cost structure. So since I want profit at the end of the year, I want actual profit to be recorded. I want actual profit. That means I need actual cost. And if I need actual cost, guys, that means I need actual cost. That means I need under absorption, over absorption to be adjusted. Are you getting me? Yes. So when you do this, you will realize that your stock will be valued at variable cost plus fixed cost. Obviously ना, जब absorption costing की बात कर रहे हो तो absorption technique आएगा तो इसका मतलब fixed cost का rate भी आएगा, तो variable और fixed दोनों होंगे when you value opening and closing stock of finished goods. बट जब मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए यू हैव टू गो फॉर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट.
तो यहां पे जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको निकालना है, इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी अ वेरिएबल कॉस्ट शीट. वेरिएबल कॉस्ट शीट मींस कॉस्ट शीट ओनली विदाउट कंसीडरिंग फिक्स कॉस्ट. ये देखो, मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिख दी और कोई कॉस्ट थी नहीं तो मैंने स्टॉक वैल्यू कर दिया. अब गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा योर स्टॉक इज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली. That is a basic difference between absorption costing and marginal costing. In fact, that is the only difference in absorption costing and marginal costing, क्योंकि cost तो मैं वैसे भी दोनों में लिख रहा हूं, variable भी लिख रहा हूं, fixed भी लिख रहा हूं. Variable cost I will write in this statement of variable cost of sales. I repeat, this is your cost sheet only without considering fixed cost. तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ सेल्स इसके एंड में मिलेगी दैट विल बी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको आप माइनस करोगे. और आपने देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी कंसीडर की है, आपने फिक्स कॉस्ट भी कंसीडर की है. और अगर आपने फिक्स कॉस्ट भी कंसीडर की है, इसका मतलब अमाउंट कॉस्ट तो सारी आ गई. द डिफरेंस इन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट and absorption costing profit will always be due to stock valuation. तो उसके लिए अगर रिकंसिलेशन पूछा तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जैसा वही फंडा यूज करना है. सिंस आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट, आई विल राइट एब्जॉर्प्शन फर्स्ट, उसके बाद मार्जिनल. आई विल राइट एब्जॉर्प्शन फर्स्ट, उसके बाद मार्जिनल. I will write absorption first, उसके बाद marginal. Absorption में absorption की फिगर, marginal में marginal की फिगर, difference positive आया, add कर दिया. लेकिन जब closing stock लिखते हो, you are talking about a credit item, और जब credit item लिखोगे तो difference positive होने के बाद भी उसे subtract किया जाएगा. Is that part clear? और फिर आएगा आपका reconciliation statement. ये था एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉन्सेप्ट. अब सेकंड सेगमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज they will give you various simple various data and they will ask you to calculate break even point, margin of safety and required sales. देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं. 5000 यूनिट्स इफ आई एम प्रोड्यूसिंग, 5000 यूनिट्स इफ आई एम प्रोड्यूसिंग, सपोज सेलिंग प्राइस इज 10, वेरिएबल कॉस्ट इज 6, यानी कि कंट्रीब्यूशन इज 4. कंट्रीब्यूशन 4 रुपया है, फिक्स कॉस्ट है 15,000, फिक्स कॉस्ट इज 15,000, फिर मिलेगा प्रॉफिट. अब 5,000 की क्वांटिटी है तो सेल्स हो जाएगा 50,000. एट द रेट ऑफ 6 वेरिएबल कॉस्ट विल बी 30,000. At the rate of 4, contribution will be 20,000. प्रॉफिट आपका होगा 5,000. अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज पे तो हूं नहीं, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज के लिए मुझे यहां पे 0 होना चाहिए. 15,000 के फिक्स कॉस्ट रिकवर किए बिना 0 तो मिल ही नहीं सकता. इसका मतलब आई वॉन्ट माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी 15,000. अब एक यूनिट बेच के 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाते हो तो 15,000 का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए आपको 3750 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे. ये होगा आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी स्ट्रक्चर. ये है आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी स्ट्रक्चर. वैल्यू के लिए आप मल्टीप्लाइड बाय 10 कर सकते हो, 37,500 मिलेगा. तो ब्रेक इवन की क्वांटिटी 3750 यूनिट्स और ब्रेक इवन की वैल्यू 37,500 यूनिट्स. तो फिर मिला कैसे? ये 15,000 फिक्स कॉस्ट थी, 4 रुपया मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, ये मुझे 3750 देता है. और जब मैं इसी को मल्टीप्लाई करता हूं सेलिंग प्राइस से तो मुझे मिल जाती है वैल्यू. अगर मुझे सिर्फ क्वांटिटी चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, और अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो फिर मैं आइदर पर यूनिट वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं या फिर टोटल वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं. आपको समझ में आया?
पीवी रेशो क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. इट इज अ प्रॉफिट रेशो ऑफ एन एडिशनल यूनिट. अब जनरली आप क्या करते हो? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 आपको प्रॉफिट रेशो देता है. लेकिन जब एडिशनल यूनिट का प्रॉफिट निकाल रहे हो तो एडिशनल यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट तो होगी नहीं. एडिशनल यूनिट्स के लिए अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होगी बाबू, एडिशनल यूनिट्स के लिए अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दोनों सेम होगा, तो आप सीधा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 कर सकते हैं. तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स के बदले कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कैन बी डिनोमिनेटर ऑल्सो. मैथ्स तो पढ़ा ही होगा. तो इसका मतलब देयर इज वन मोर फॉर्मूला पॉसिबल, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. समझ में आया? तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक ही फॉर्मूला है जो आपको क्वांटिटी देगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय सेल्स करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी. फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी. फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करोगे तो भी वैल्यू मिलेगी. करेक्ट? ओके. अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे आप? एक करते थे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी हो सकता है ना, ऐसे रिवर्स में जाओगे तो. इफ यू गो इन द रिवर्स डायरेक्शन यू हैव फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एज वेल. बट देयर इज वन मोर फॉर्मूला. अगर पीवी रेशियो is contribution upon sales into 100, अगर पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, पीवी रेशियो अपॉन 100 इनटू सेल्स मुझे कंट्रीब्यूशन दे देना चाहिए. तो कंट्रीब्यूशन निकालने का एक और फॉर्मूला आता है, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो. तो कंट्रीब्यूशन निकालने के तीन फॉर्मूला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एंड इवन द थर्ड वन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो. ब्रेक इवन क्वांटिटी चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कीजिए. वैल्यू चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स कर लो, या फिर फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कर लो. बात तो सेम ही है. ठीक है. अब आप फिलहाल 5000 यूनिट्स बना के बैठे हो. आपकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट वाज 3750. आप 3750 यूनिट्स यू मस्ट सेल टू रिकवर योर एंटायर कॉस्ट. यू हैव सोल्ड 5000 यूनिट्स. सो बाय व्हाट मार्जिन आर यू सेफ? You are safe by 1250 units or else 12,500 rupees. अगर sales, if I start decreasing sales, I can decrease sales one by one. I can decrease sales one by one. By maximum 1250. अगर मैं 1250 से ज्यादा reduce करता हूं तो my quantity will go down below 3750 and I'll start getting loss. तो मेरी safety margin कितनी है? My safety margin is actual sales minus break even sales. Whether it is value or it is quantity, formula remains same. Actual sales minus break even point sales. एक और फॉर्मूला बेस हो सकता है. 5000 यूनिट्स का 5000 यूनिट्स बेच के 5000 का प्रॉफिट हो रहा है. एक यूनिट में अगर 3750 के ऊपर बेचूं, ब्रेक इवन के ऊपर एक यूनिट अगर मैंने बेचा तो फिक्स कॉस्ट तो आएगी नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो मेरी 3750 पे ही रिकवर हो रही है. तो 3750 के ऊपर अगर एक यूनिट बेचता हूं, 3750 के ऊपर अगर एक यूनिट भी बेचता हूं तो क्या होगा? 3750 के ऊपर अगर एक यूनिट भी मैंने बेचा तो क्या होगा? 3750 के ऊपर एक यूनिट अगर मैंने बेचा तो मेरा खर्चा सिर्फ 6 रुपया होगा, मुझे बेच के 10 रुपया मिलेगा, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन होगा 4 रुपया. और 4 रुपया पर यूनिट मैं कमा रहा हूं, कंट्रीब्यूशन वही होगा मेरा प्रॉफिट, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो होगी नहीं. मतलब ब्रेक इवन के ऊपर एक यूनिट मुझे 4 रुपया प्रॉफिट देता है.
तो 4 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए, इन अदर वर्ड्स, आई हैव टू सेल 1 यूनिट अबाउ ब्रेक इवन पॉइंट। 8 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आई हैव टू सेल 2 यूनिट्स अबाउ ब्रेक इवन पॉइंट। 40 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आई हैव टू सेल 10 यूनिट्स अबाउ ब्रेक इवन पॉइंट। मुझे 5000 का प्रॉफिट चाहिए, तो 5000 डिवाइडेड बाय 4, 1250 यूनिट शुड बी सोल्ड अबाउ ब्रेक इवन पॉइंट। दैट इज व्हाट आई हैव डन। ये भी तो 1250 दे रहा था हमको बच्चा लोग। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको ढूंढनी है तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स कर लो, क्वांटिटी वैल्यू दोनों के लिए आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट वाला बेस बनाना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी विल बी प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स वैल्यू के लिए आएगा, एंड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो एक और फॉर्मूला वैल्यू के लिए। क्वांटिटी के लिए एक ही है ये, वैल्यू के लिए दो मिलेंगे। ब्रेक इवन में वी वर ट्राइंग टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में वी आर ट्राइंग टू अर्न द प्रॉफिट। तो इसका मतलब ब्रेक इवन क्वांटिटी आप recovers cost for you, margin of safety gives you profit, so break even plus margin of safety if you combine you get actual sales। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि 60% is break even point, 40% will be your margin of safety। क्वेश्चन कहता है 70% is your margin of safety, that means 30% will be your break even point। बस ये फॉर्मूलाज यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। So second segment of this chapter will be simply calculating fixed cost contribution, PV ratio, required sales and margin of safety and all। इसमें important part आपको समझना है when they ask you a combined calculation of break even point। देखो, combined calculation of break even point। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कंबाइंड कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअली प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, बट पॉसिबल नहीं है बिकॉज फिक्स कॉस्ट कंबाइंड है। दो टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, दोनों का पर यूनिट अवेलेबल है। चाहूं तो मैं हर एक का ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी कैलकुलेशन कर सकता हूं, प्रोवाइडेड आई हैव इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स। अगर मेरे पास इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट नहीं है तो आई विल यूज कंबाइंड फिक्स कॉस्ट एज अ बेस। अगर मेरे पास इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट नहीं है तो आई विल यूज कंबाइंड फिक्स कॉस्ट एज अ बेस, और कंबाइंड फिक्स कॉस्ट है मेरी 15,000। तो मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों प्रोडक्ट का निकाल के दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके आई फाउंड आउट कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई फाउंड आउट टोटल कंट्रीब्यूशन एज वेल। फिर मुझे पता चलता है कि ये 2,70,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन इज एन आउटकम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ 27,000 यूनिट्स। तो दोनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन अमाउंट, दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऐड करके मैंने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, वेटेड एवरेज 10 रुपीज। उस 10 रुपीज से जो मेरा वेटेड एवरेज कंबाइंड कैलकुलेशन है, जो मेरा कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट देगा वो होगा 1500। हाँ, अब 1500 कंपनी का टोटल ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। मेरा दोनों प्रोडक्ट 9:18 रेशियो में है, इसका मतलब 1:2 रेशियो में है, तो फिर मैंने 1:2 रेशियो अप्लाई करके इंडिविजुअल ब्रेक इवन ढूंढ लिया। दिस वॉज अ स्पेशल पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट दी है तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन निकाल लो। अगर आपको प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट नहीं दी है तो आप कंबाइंड ब्रेक इवन निकाल के स्प्लिट कर सकते हैं। द अदर पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिलेटेड टू की फैक्टर कॉन्सेप्ट। इट इज रिलेटेड टू की फैक्टर कॉन्सेप्ट। इट इज रिलेटेड टू की फैक्टर कॉन्सेप्ट। की फैक्टर कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, मैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर दे रहा हूं, ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 3 टाइप के प्रोडक्ट्स है
And if I give you unlimited supply of material and unlimited time if you have, you can actually produce any quantity. You can actually produce any quantity of any product. लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, if you have limited resources in terms of time, if you have limited resources in terms of material, then in that case आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा. Then in that case आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप जो चाहे क्वांटिटी उतनी चाहे क्वांटिटी बना लो. नॉट पॉसिबल. फिर आप क्या करोगे? You will utilize that limited time or that limited material in such a manner that your highly profitable product will be produced to the maximum extent. And then thereafter you will try to go for the second profitable product. उसके बाद भी अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा है या थोड़ा मटेरियल बचा है तो you will go for the third profitable product. Otherwise you will not produce the third product at all. Are you guys clear with it? तो बेसिकली जब भी आपको पता चलता है कि कोई लिमिटिंग फैक्टर है, जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका लिमिटिंग फैक्टर था टाइम. सिर्फ 200 घंटे आपके पास. 200 घंटे में ऐसे यूटिलाइज कर लूंगा. I will utilize 200 hours in such a manner that my highly profitable product will be produced first, then second, and then time बचा तो I'll go for the third one. तो मुझे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो तीनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा. बट दिस विल नॉट बी द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग. मेरे लिए लिमिटिंग फैक्टर है टाइम. तो मैं जानना चाहता हूं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बजाय कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना है. देखो, अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं टाइम इस तरह से यूटिलाइज करूंगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन पर आवर जब सबसे ज्यादा जिस प्रोडक्ट का है दैट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस फर्स्ट. तो मैंने क्या किया, मैंने आवर्स पर यूनिट निकाल लिए. एक 200 घंटे में 5000 यूनिट्स आपके ए के बन सकते हैं. इसका मतलब एक यूनिट लेता है 0.04 आवर्स. 200 घंटे में आप चाहो तो 8000 यूनिट्स बना सकते हो बी के, मतलब बी रिक्वायर 0.025 आवर्स. और 200 घंटे में आप चाहो तो 6000 यूनिट्स बना सकते हो, मतलब 1 यूनिट टेक 0.033 आवर्स. एम आई राइट? यस और नो? अब मेरा कैलकुलेशन एकदम सिंपल है. एक यूनिट बनाने के लिए 0.04 आवर्स लगते हैं. एक यूनिट मुझे 80 रुपीस का प्रॉफिट देता है, मतलब 0.04 आवर्स मुझे 80 रुपए का प्रॉफिट देते हैं. मैंने अगर पूरा 1 घंटा काम किया तो मेरा प्रॉफिट, मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2000 in case of A, so 1600 in case of B and 1800 in case of C. तो मेरे लिए रैंकिंग एकदम क्लियर है. मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी होगी ए, क्योंकि मेरे पास अगर टाइम कम है तो मैं सबसे पहले टाइम यूज करूंगा ए के लिए, तो मेरा आर्ली कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो जाए. फिर मैं टाइम दूंगा सी को ताकि मेरा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आ जाए. उसके बाद भी अगर टाइम बचा तो आई विल गो फॉर बी. देखो, बी इज नॉट अ लॉस मेकिंग. बी इज हैविंग लेसर प्रॉफिट एज कंपेयर टू ए एंड सी. तो बी विल बी गिवन द लास्ट प्रायोरिटी. तो जैसे टेबल बनेगा, सबसे पहले 2000 यूनिट्स मैक्सिमम डिमांड ए का है 2000, तो वो पूरा कर लूंगा, उसमें 80 आवर्स चले जाएंगे. Then I will go for the next profitable product 2400 0.33 रिकरिंग आवर्स के हिसाब से 80 घंटे तो उसमें भी चले जाएंगे. Now 80 hours I have utilized for A, 80 hours I have utilized for C. That means 160 hours are already utilized out of 200. इसका मतलब 40 घंटे मेरे पास जो बचे हैं, उन 40 घंटों में I can still think of producing B. B is also a profitable product. Profit कम है तो क्या हुआ, है तो सही. So I will give those 40 hours to produce 1600 units of B, and that is my calculation, that is my mix.
तो सबसे पहले आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर आप निकालोगे लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। मतलब अगर मटेरियल कम पड़ा है तो केजीज पर यूनिट निकाल लेते, अगर टाइम कम पड़ा है तो आवर्स पर यूनिट निकालेंगे। इमीडिएटली दिस डिवाइडेड बाय दिस मुझे देगा कंट्रीब्यूशन पर केजी और कंट्रीब्यूशन पर आर। इस क्वेश्चन में हमको मिला कंट्रीब्यूशन पर आर, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स अपने लिमिटेड थे और हमने यहां पे नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट लिख लिया था। ये की फैक्टर के सम्स हुए। अब अगर 3 कंस्ट्रेंट्स है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में हुआ था हमारे साथ, मेरे पास मशीन ए में भी टाइम कम था, मशीन बी में भी टाइम कम था और मेरे पास मटेरियल भी लिमिटेड था, तो इन दैट केस आपको क्वांटिटी ऐसी सिलेक्ट करनी होगी जो तीनों को फुलफिल कर दे। आपको क्वांटिटी ऐसी करनी पड़ेगी सिलेक्ट जो तीनों कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर दे। मतलब अगर मैं 8125 यूनिट्स अलॉय के बनाना चालू कर दूं तो मेरे पास मशीन ए में टाइम नहीं बचेगा। अगर मैंने 9000 यूनिट्स ऑफ पार्ट ए चालू कर दूं तो बी में बहुत टाइम होगा मेरे पास, लेकिन ए में बिल्कुल टाइम नहीं होगा और इनफ मटेरियल भी नहीं होगा। मैक्सिमम मटेरियल के पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम 8125 यूनिट्स बन सकते हैं। मशीन ए के टाइम के कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम 6666 यूनिट्स बन सकते हैं और मशीन बी के हिसाब से मैक्सिमम 9000 यूनिट्स बन सकते हैं। तो हमको 6666 पे रुकना होगा। तीनों कंस्ट्रेंट्स अगर फुलफिल करने हैं तो विच एवर इज लेस वाली क्वांटिटी उठानी पड़ेगी। ये एक पार्ट याद रखना। अगर एक ही कंस्टेंट है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालिए, आर्स पर यूनिट निकालिए, कंट्रीब्यूशन पर आर कैलकुलेट करके रैंकिंग कर दीजिए। लेकिन अगर 3 कंस्ट्रेंट्स है, इफ यू हैव 3 कंस्ट्रेंट्स एंड इफ ऑल द 3 कंस्ट्रेंट्स आर टू बी फुलफिल्ड, देन प्लीज 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 अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू गो फॉर the minimum quantity which will satisfy all the 3 constraints. फिर आता है एक मर्जर का क्वेश्चन। मर्जर में एक चीज याद रखिए, एक सिंपल बात बता देता हूं। आपके 2 टाइप के कंपनीज या 2 टाइप के प्लांट आपको एग्जाम में दे देंगे। वन विल बी एट से बोथ विल बी एट डिफरेंट परसेंटेज। उनको एट पार लेके आना, उनको एट पार लेके आना। एट पार लाने के बाद ही मर्जर हो सकता है। 2 different companies or 2 different plants at 2 different levels cannot be merged. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका होता है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का कंसेप्ट एकदम सिंपल है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। मुझे कार लेनी है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो आई कैन गो फॉर डीजल कार और आई कैन गो फॉर पेट्रोल कार। डीजल कार का माइलेज और ऑपरेशनल कॉस्ट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर और पेट्रोल का एवरेज कॉस्ट स्ट्रक्चर इज 10 रुपीज पर किलोमीटर। लेकिन पेट्रोल कार मुझे पड़ती है 10 लाख में, डीजल कार के लिए मुझे 12 लाख देने पड़ते हैं। दैट मीन्स इफ आई ट्राई टू सिक्योर सेव माई वेरिएबल कॉस्ट, माई इनिशियल कॉस्ट इंक्रीजेस। इसका मतलब मैं सेव करूंगा 10 पर किलोमीटर माइनस 5 पर किलोमीटर, 5 रुपया पर किलोमीटर सेव करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अभी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 2 लाख रुपए। तो मतलब 2 लाख ज्यादा डाल के 5 रुपया पर किलोमीटर सेव करूंगा, तो इसका मतलब 40,000 किलोमीटर तक तो असली सेविंग है ही नहीं। मतलब मेरा सेविंग 40,000 किलोमीटर के बाद शुरू होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका रनिंग 40,000 से ज्यादा होने वाला है, यू गो फॉर डीजल कार। अगर आपको लगता है कि आपका सेविंग आपका रनिंग 40,000 किलोमीटर से कम होने वाला है, गो फॉर पेट्रोल कार। सिंपल। अगर आपको लगता है कि आप 40,000 के ऊपर चलाओगे तो डीजल ले लो, आपका सेविंग दिखेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 40,000 तो नहीं होने वाले, तो गो फॉर पेट्रोल, क्योंकि सेविंग तो है ही नहीं। 2 लाख रुपए ज्यादा भर के 5 रुपए पर किलोमीटर सेव करने का लॉजिक ही नहीं है ना। सो बेसिकली सिंपल बात याद रखना, इट इज ऑलवेज डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी इससे ज्यादा है तो गो फॉर ऑप्शन हैविंग हायर फिक्स कॉस्ट। लॉजिकली सोचो,
लेवल ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है मतलब रेवेन्यू ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है मतलब आप हायर फिक्स कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट के नीचे हो मतलब आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी कम है, क्वांटिटी कम है, रेवेन्यू कम होगा, तो हाई फिक्स कॉस्ट मत रखो। ऑप्शन विद अ लोअर फिक्स कॉस्ट इज एडवाइजेबल। जब आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे तो 3 ऑप्शंस में से दो दो का बंडल बना के पहले 3 पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कैलकुलेट कर लो। लोएस्ट वाला पहले सेटल कर लो, हाईएस्ट वाला पहले सेटल कर लो, जो बचेगा वो मिडिल पार्ट होगा। जैसे मुझे यहां पे ए और बी दो ऑप्शंस के लिए ब्रेक इवन कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट मिला था 300। मतलब अगर मेरे केसेस 300 या उससे ज्यादा है तो ऑप्शन बी इज बेटर। अगर मेरे केसेस 300 या उससे कम है तो ऑप्शन ए इज बेटर। 300 पे ए और बी दोनों चलेंगे, इट इज पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। मेरे पास ई और सी का भी कैलकुलेशन था जो कहता है कि 800 केसेस से ज्यादा होते हैं तो सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट वाला ऑप्शन सी कैन बी अवेल्ड। बट अगर केसेस 800 से कम है तो ऑप्शन बी इज बेटर फॉर यू विद अ लोअर फिक्स कॉस्ट। एट 800 you can go for B, you can even go for C, doesn't matter. So what we have done is up to 300 I have secured A, 800 onwards I have secured C. ये तो क्लियर ही है। और बाकी जो बचा 300 to 800 B फॉर बीच का लिख दिया, ज्यादा लोड मत लेना। सिक्योर योर लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, सिक्योर योर हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी, बीच में जो बचेगा दैट विल बी योर थर्ड ऑप्शन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग लाइक क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला था कि आपकी कैपेसिटी 10,000 मेडल्स की है, आप 7,500 ऑलरेडी बना रहे हो। इस सिचुएशन में आपको पता चलता है कि 10,000 की कैपेसिटी है एंड यू आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग 7,500, दैट मीन्स देयर इज अ स्पेयर कैपेसिटी। That means there is a spare capacity of 2,500. Now that means there will not be any extra fixed cost incurred for this spare capacity. Now in this situation, if you are getting a new project, for these 2,500 units, you will consider only variable cost. Your decision will be taken based on variable cost only. तो हमने सबसे पहले क्या किया था, एक वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर निकाल लिया। We all know that for variable cost structure we don't rely on total, we rely on per unit. So 6,37,000 के variable cost को 7,500 quantity से divide करके we found out variable cost to be 85. Fixed cost is also 4,50,000. अब देखो मैं 7,500 यूनिट्स बना रहा हूं, उसकी फिक्स कॉस्ट है 4,50,000। मुझे जो ऑफर मिल रही है उसके लिए देयर इज नो एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर्ड, एंड इफ देयर इज नो एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर्ड दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट इज द ओनली कॉस्ट व्हिच इज टू बी इनकर्ड। 120 रुपए ऑफर किया था कस्टमर ने, उसके सामने मेरा खर्चा सिर्फ 85 का होने वाला है। दैट मींस आई एम स्टिल गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 35,000 and that is why I accepted the proposal. There is no fixed cost. So क्यों प्रॉफिट के स्टेटमेंट लंबे लंबे बना के बोर कर रहे हो? दिमाग लगाओ। एक यूनिट बनाने के लिए 85 का खर्चा आएगा, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं। एक यूनिट का ऑफर 120 रुपए का है, मतलब मुझे यहाँ पे भी खुल्लम खुल्ला दिख रहा है 35 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट है। तो 2,500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 35, 87,500 का प्रॉफिट आ रहा है। विल एक्सेप्ट द प्रपोजल। फिर उन्होंने सेकेंड पार्ट में बोला कि हमारी कैपेसिटी 9,000 है। अब सुनो, 9,000 में अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूं जो पार्शियली एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, जो पार्टली एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, 9,000 यूनिट्स में से 2,500 यूनिट्स में अगर ऑफर के लिए दे दूं तो आउटसाइड मार्केट के लिए मेरे पास बचेंगे सिर्फ 6,500 यूनिट्स। करंटली मैं बेचता हूं 7,500. इफ आई एक्सेप्ट द ऑफर आई विल बी हैविंग ओनली 6,500 यूनिट्स विथ मी टू बी सोल्ड इन द मार्केट। दैट मींस 1,000 यूनिट्स आई विल हैव टू सैक्रिफाइस, तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। 1,000 यूनिट्स अगर मैं मार्केट में नहीं बेच सकता तो 150 की सेलिंग प्राइस, तो 150 की सेलिंग प्राइस माइनस 85 की वेरिएबल कॉस्ट, 65 का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा मेरा। उन
those 1000 units will not be sold in the market and I will not be able to earn 65 per unit. So 65 per unit multiplied by 1000, 65,000 I'm not going to recover, I am going to sacrifice. Opportunity lost is opportunity cost. ज़्यादा लोड लेने का नहीं. Opportunity lost is opportunity cost. क्या खोया है? 65,000. अच्छा 65,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने के बावजूद मैं 87,500 कमाऊंगा ऑर्डर से, मतलब 22,500 इज माय गेन, सो आई कैन स्टिल एक्सेप्ट द प्रपोजल. तो ये डिसीजन मेकिंग में भी एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, ऑल योर डिसीजंस आर टू बी टेकन बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट ओनली until and unless there is a fixed cost incurred by you. अगर फिक्स कॉस्ट इनकर की होती तो वैसे भी मार्जिनल कॉस्टिंग कंसेप्ट फेल होता. आई हैव टू गो फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देन, और मुझे डिसीजन कंट्रीब्यूशन पे नहीं या वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं, मुझे डिसीजन फिक्स कॉस्ट कंसीडर करने के बाद आने वाले प्रॉफिट पे लेनी पड़ती. So whenever I talk about an additional unit, if there is no additional fixed cost, you better take decision based on contribution. कैलसी पे कैलकुलेट करके सीधा दिखा दो एग्जाम में. दो अलग अलग प्रॉफिट स्टेटमेंट बना के बोर नहीं करने का. टेक योर डिसीजन डायरेक्टली. सिंपल सोल्यूशन दिया है मैंने, देख लो. चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका. दो पेज का सॉल्यूशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें हो जाएगा काम. अरे समझा. यस. सो नाउ वी हैड इनफ ऑफ द थियरी पार्ट. Now quickly we'll solve questions on marginal costing. और मैं इधर उधर का टाइम वेस्ट किए बिना I'm directly starting with key factor. You already know what is key factor. The resource which is limited in supply. From the following particulars, find the most profitable product mix and prepare a statement of profitability of that product. मतलब we are dealing with product A, product B, product C, three types of products we are producing and selling. Units budgeted to be produced, quantity to be manufactured is also given to us. Selling price is also mentioned. Requirement per unit for material. Material is 5 kgs, labor is 4 hours. Variable cost is 7. Fixed overheads are 10. Fixed overheads are 10. And cost of material. Okay, so 1 किलो मटीरियल 4 रुपए का है. 1 किलो मटीरियल अगर 4 रुपए का है तो 5 kgs, 3 kgs and 4 kgs will cost you 20, 12 and 16 in terms of material. Labor का rate 2 rupees per hour, so 8, 6 and 4 will be the labor cost. Variable overheads are already given 7, 13 and 8. Maximum possible units. Maximum possible units 4,000, 5,000, 1,500. 4,000, 5,000 and 1,500. We can produce this, but we have demand of this. So let's see. यूनिट्स बजटेड टू बी प्रोड्यूस्ड आर ऑलरेडी गिवन, मतलब हम लोग ने प्लान किया इतना बनाने का. बट ऐसा है कि अगर कोई की फैक्टर होता है, सी की फैक्टर नहीं है, इनफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, आप जो चाहे वो क्वांटिटी बना के भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इफ यू हैव a key factor, if you have a limited resource, the resource will be utilized in such a manner that first priority will be given to the highly profitable product, then the second profitable product, and then if that resource still exists, then you will go for the third profitable product. All the three products are produced from the same material using same type of machines and labor. Direct labor, which is a key factor, is limited to 18,600 hours. मतलब अपना limiting factor है labor.
और उसके बाद पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट प्रोडक्ट मिक्स कंसिडरिंग मटेरियल एज अ की फैक्टर विच इज लिमिटेड टू 30,000 kgs। मतलब पहले हमको फाइंड आउट करना है most profitable mix and profit statement if labor is a key factor, and then we are supposed to find out product mix only if material is a key factor. So basically इस एक क्वेश्चन में हम दोनों कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। मटीरियल इज अ की फैक्टर है, लेबर इज अ की फैक्टर। अपना पहला की फैक्टर इज लेबर। सो अगर मैं ये कहता हूं कि माय हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस फर्स्ट, मुझे हर एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। एंड यू ऑलरेडी नो मैं कितने भी यूनिट्स बनाऊं, 1000 ऑफ ए, 2000 ऑफ बी, 5000 ऑफ सी, या इसको रिवर्स कर दूं 5000 ऑफ ए, 2000 ऑफ बी एंड 1000 ऑफ सी, तो भी मेरे फिक्स कॉस्ट पे कोई असर नहीं होता। एंड सिंस माय फिक्स कॉस्ट डजंट गेट अफेक्टेड, I will not consider fixed cost as a basis of decision making, and rather than taking decisions based on profit, I can take all my decisions on the basis of contribution. So statement of contribution will be the starting point. Statement of contribution will be the first thing what we are supposed to do. Here, your key factor is labor hours. Your key factor is labor hours. We have three types of products, A, B and C. A, B and C. I will first start with selling price. How much is the selling price? 60, 55, 50. 60, 55 and 50 minus variable cost per unit is what we are supposed to do. In that we have material, we have labor. 5 kgs, 3 kgs and 4 kgs is the requirement. 5, 3 and 4 kgs is the requirement, and the cost of the material is 4. So 5, 3 and 4 is the requirement. Five kgs, 3 kgs and 4 kgs is the requirement. 5, 3, 4 and material cost is 4 per kg. मतलब मुझे हर एक यूनिट ए का बनाने के लिए 20 रुपया खर्चा आएगा, 12 रुपीज में बी बन जाएगा, 16 रुपीज लगेगा सी बनाने के लिए। लेबर आवर्स की अगर मैं बात करूं तो 432 आवर्स, 432 आवर्स लगने वाले। 4, 3 and 2 आवर्स लगने वाले हैं। तो इसका मतलब 8 रुपीज, 6 रुपीज and 4 rupees अपनी labor cost आएगी। Then I have variable overheads also to be recorded. 7, 13, 8. 7, 13 and 8. इस वजह से total variable cost होगी 35, 31 and 28. क्वेश्चन में और कोई भी वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है, वी हैव ओनली दिस मच। तो फिर सेलिंग प्राइस विल बी मार्क्ड एज 1, वेरिएबल कॉस्ट विल बी मार्क्ड एज 2, contribution per unit will be 1 minus 2, 25,
24 and 22. But याद रखिए, decision will never be taken based on contribution per unit. Decision is to be taken based on the limiting factor. How many hours are required for each unit? 4 hours, 3 hours, 2 hours. Since labor is a key factor, since labor hours is a key factor, I want to know how many hours are required for producing 1 unit of finished product. अगर 4 घंटा काम करके 1 यूनिट मिलता है और 1 यूनिट 25 का कंट्रीब्यूशन देता है, तो 25 डिवाइडेड बाय 4, 6.25 आता है मेरा कंट्रीब्यूशन पर आवर. लेकिन यहां पे 3 घंटा काम करने के बाद 1 यूनिट मिलता है और 1 यूनिट आपको 24 निकाल के देता है. दैट मीन्स इट इज गिविंग यू 8. एंड लुक एट दिस, सिर्फ 2 घंटा काम करके आप 22 रुपया कमा रहे हो. सो कंट्रीब्यूशन पर आवर इज 11. तो अगर रैंकिंग की बात करूं तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सी फॉलोड बाय बी, और टाइम अगर बचा तो आई विल थिंक ऑफ गोइंग फॉर ए. तो ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन. ठीक है, अब इसको बेस बना के वी विल फाइंड आउट statement of optimum mix, or rather we'll prepare statement of optimum mix. Statement of optimum mix. अब optimum mix मतलब maximum नहीं होता. Optimum मतलब the combination of finished goods which will maximize your profit. So type of finished goods will be recorded here. Quantity to be produced will be recorded here. Then we'll also write down hours per unit, and then we will mention hours utilized. C, B, टाइम बचा तो A. तो फिर टाइम है कितना अपने पास? 18,600 hours are available. 18,600 hours are available. 18,600 hours. चलिए, हम लोग मैक्सिमम सेल्स कितना प्लान कर सकते हैं? सी का 1,500. Then why to settle at 1,200? We will sell 1,500 units of C. और सी का 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है. तो आपके 3,000 आवर्स यूटिलाइज हो जाएंगे फॉर प्रोड्यूसिंग सी. सेकेंड रैंकिंग इज बी. बी के मैक्सिमम बेच सकते हो 5,000. प्लान किया था आपने 3,000 का. तो व्हाई शुड आई स्टॉप एट 3,000 व्हेन आई कैन सेल 5,000? तो मैं बनाऊंगा 5,000 यूनिट्स ऑफ बी, और बी के रिक्वायरमेंट है 3 आवर्स. सो 15,000 आवर्स विल बी यूटिलाइज्ड. अब आपके पास बचे सिर्फ 600 घंटे, क्योंकि 18,600 में से 18,000 आवर्स आर प्रोड्यूस्ड, आर ऑलरेडी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बी एंड सी. हाँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग. 600 घंटे जो बचे हैं उसमें हम लोग ए तो बना ही सकते हैं. 4 घंटा लेता है 1 यूनिट, तो बॉस 150 यूनिट्स तो बना ही सकते हैं ना हम लोग. वी कैन इजीली प्रोड्यूस 150 यूनिट. सो दिस इज योर ऑप्टिमम मिक्स. समझ में आया? एकदम सिंपल कैलकुलेशन, ज्यादा लोड नहीं लेने का. तो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट मांगा है. अब सेल्स से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ कंट्रीब्यूशन.
we will not start with sales, we'll start with contribution. A, B, C लिखा जरूर है लेकिन उठाना संभाल के. 150, 5,000 and 1,500 units we have planned into Chintu their respective contribution. (150 units into 25) 3750. 1,20,000 का आपका contribution. एंड ये होगा 33,000. तो आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन के फिगर 156,750 माइनस फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट. अच्छा, अब रही बात फिक्स कॉस्ट की, तो इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है 10, 10, 10 per unit. Absorption rate is always calculated on the basis of budgeted quantity. इसका मतलब budgeted fixed overheads upon 1800 must have given you 10. Budgeted fixed overheads upon 3000 must have given you 10, and budgeted fixed overheads upon 120 must have given you 10. तो एक काम करते हैं, how much is your total? ये 10 into this 18,000 plus 30,048 plus 1260. 60,000 माइनस करने के बाद 96,750 is my profit. समझ में आया? 10 per unit multiplied by total budgeted quantity. $10 per unit was given as absorption rate. Absorption rate into budgeted quantity will always give you budgeted fixed cost. Actual तो खैर इन्होंने दी नहीं है. समझाइए. Are you guys clear with it? मुझे कंट्रीब्यूशन मिला तो ये था हमारा लेबर एज अ की फैक्टर. इसी क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि मटेरियल की फैक्टर होगा तो क्या करोगे. चलो ठीक है, तो नाउ की फैक्टर इज मटेरियल इन टर्म्स ऑफ केजीज. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक सब कुछ सेम होगा, एक सिंपल चेंज होगा. अब मुझे निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर केजी, क्योंकि मेरा डिसीजन अब 1 यूनिट ऑफ की फैक्टर के हिसाब से चलेगा. तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिला है 25, 24, 22 पर यूनिट, और मेरी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है 5, 3 एंड 4. मेरी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है 5 kgs, 3 kgs एंड 4 kgs. तो 5 किलो इनपुट करने के बाद 1 यूनिट मिलता है और 1 यूनिट 25 देता है. मतलब दिस इज 5, दिस इज 8 and this is 5.5. So ranking will be B, C and then A. तो अपना ऑप्टिमम मिक्स का कैलकुलेशन भी अब बदलेगा
in the form of B, C and A. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ kgs per unit और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ kgs, यूटिलाइज से ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा कंज्यूम्ड। तो B की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है जो बेच सकते हो? 5000 बेच सकते हो। B का 5000 बेच सकते हो। B की रिक्वायरमेंट है 3 kgs, तो 15,000 kgs तो चले जाएंगे आपके B में। फिर मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी सोल्ड फॉर C इज 1500 यूनिट्स। उसकी रिक्वायरमेंट है 4 किलो, तो अनदर 6000 विल बी यूटिलाइज्ड। तो 21,000 चला गया, 9,000 बच गया। इसकी रिक्वायरमेंट है 5, सो 9,000 kgs जो बचा है डिवाइडेड बाय 5 kgs पर यूनिट। 1800 यूनिट ए के बना सकते हो। आपने जो प्लान किया था वो हो सकता है ए के बारे में, लेकिन बी और सी के आप ज्यादा यूनिट्स बना के बेच रहे हो। दैट्स द एडवांटेज यू हैव। दैट इज द एडवांटेज यू हैव। आपको समझा कैलकुलेशन? सेम चीज। देख लो। अगर मेरे पास 1 kg बचता है तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर इट टू बी यूज्ड फॉर बी देन फॉर सी, एंड उसके बाद भी अगर कुछ बचा तो आई विल थिंक ऑफ प्रोड्यूसिंग ए लास्ट प्रायोरिटी। सो दैट्स योर क्वेश्चन ऑन की फैक्टर। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल, कुछ दाम नहीं है इसमें। Calculate break-even sales, margin of safety and sales to get a profit of 2,40,000 from the following details. 2 साल का सेल्स दिया है, 2 साल की कॉस्ट दी है, तो नेचुरली 2 साल का प्रॉफिट मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 3 lakhs और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 4.2 lakhs। बस तो फिर क्लियर है सब कुछ। डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स इंटू 100 करोगे तो पीवी रेशियो मिलेगा 20%। डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, पीवी रेशियो इज 20%। अब दोनों में से कोई एक सेल्स बेस बना लेते हैं। 30 lakhs, 30 lakhs का 20% will be 6 lakhs, so contribution is 6 lakhs। 6 lakhs में से 3 लाख प्रॉफिट है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट भी 3 लाख होगी। आपको भरोसा नहीं, आप इस पे अप्लाई करके देखो। 36 lakhs इंटू 20%, 7.2 आती है आपकी कंट्रीब्यूशन की फिगर। उसमें से 4.2 का प्रॉफिट हटाओगे तो 3 लाख फिक्स कॉस्ट होगी। फिर तो क्या ही रखा है इस सब में। ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पूछा है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो बराबर। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3 lakhs, पीवी रेशियो 20%। 3 lakhs अपॉन 20%, 15 lakhs will be the break-even point, and break-even quantity will be fixed cost upon contribution per unit.
अब आपको यहाँ पे जो 6 लाख का कंट्रीब्यूशन मिला था फर्स्ट ईयर में, तब क्वांटिटी थी 1 लाख, यानी कि 6 पर यूनिट इज अ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. So 3 lakhs divided by 6, 50,000 units will be the answer. देखो 50,000 units, 15 लाख सेल्स, मतलब 30 रुपया सेलिंग प्राइस होनी चाहिए. अरे 15 lakhs आपका ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू है, 50,000 यूनिट्स का तो 30 रुपया सेलिंग प्राइस होगी ना. और तो 30 रुपया है कि नहीं चेक करो. 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 30 पर यूनिट 30. Since fixed cost is same for both the years, break even point will be same, but margin of safety के दो आंसर्स आएंगे. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1, ईयर 2. $3 लाख का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में, 4.2 lakhs का प्रॉफिट सेकेंड ईयर में. सो रुपीज 15 lakhs एंड रुपीज 21 lakhs. आप चेक कर सकते हो. 21 lakhs मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 15 lakhs ब्रेक इवन पॉइंट, 36 लाख सेल्स है सेकेंड ईयर का, एंड 15 + 15 30 लाख सेल्स है फर्स्ट ईयर का. अपार्ट फ्रॉम दिस you will have margin of safety quantity, profit upon contribution per unit. So year 1 में 3 lakhs upon 6, 50,000 units. year 2 में 4.2 lakhs upon 6, 70,000 units. चेक करो. ईयर 2 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70,000, ब्रेक इवन इज 50,000, टोटल क्वांटिटी टैलीज विथ 1,20,000. इसमें पर यूनिट भी था तो दोनों निकाल लिया. और रिक्वायर्ड सेल्स तो क्या ही बोलूं अभी मैं. 2,40,000 का प्रॉफिट चाहिए आपको, तो 2,40,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए पहले आपको 3 लाख की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी पड़ेगी. सो डिवाइडेड बाय 6, 90,000 यूनिट्स विल बी द आंसर. या फिर 3 lakhs की फिक्स कॉस्ट, 2,40,000 रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो 20%, 27 lakhs का सेल्स. वैसे भी 90,000 इंटू 30 पर यूनिट करते तो भी वही आता. Quite a simple calculation, just a practice. I am expecting this in MCQ section. ये बड़ा है, ये आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मर्जर. और मैंने आपको कहा था मर्जर जब भी होगा एट पार होगा, अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्लांट को मर्ज करने का नहीं. सो वी हैव टू प्लांट्स, प्लांट ए, प्लांट बी. ए इज वर्किंग एट 70% ऑफ इट्स कैपेसिटी, बी इज वर्किंग एट 60% ऑफ इट्स कैपेसिटी. सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दी है और फिक्स कॉस्ट भी दी है. अब सबसे पहली बात, मांगा क्या है? It has been decided to merge plant B with plant A and the additional expenses involved in merger amounted to 2 lakhs. ठीक है. Find break-even point of plant A, plant B before merger and break-even point after break-even point of the merged plant. And then find the capacity utilization of the merged plant to get an overall profit of 18 lakhs. अब देखो, इनको एट पार लाना है, तो या तो ए को 70 पे रखो, बी को 60 से 70 कर लो, या तो बी को 60 पे रखो, ए को 70 से 60 पे कर लो. बात एक ही है.
दोनों को 100% पे भी लेके जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैलकुलेशन जितना कम हो उतना बेटर है। आर यू गेटिंग मी? तो मैं क्या करता हूं, ए को 70 पे रखता हूं, बी को 60 से 70 पे लेके आता हूं, मतलब 90 लाख का सेल्स आपका 60% पे है, तो 70 पे कितना, तो दिस विल बी 105 नॉट 90। 75 60 पे है तो 70 पे कितना, 87.5। ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट 30-20 वो तो सेम ही रहेगी, वो तो कैपेसिटी के हिसाब से चेंज नहीं होगी। तो बॉस 150 माइनस 105, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 45 माइनस 30, अपना प्रॉफिट यहां पे आ रहा था 15, अब आएगा 105 माइनस 87.5 माइनस 20, यहां पे आ रहा है लॉस 2.5। मर्ज करते हैं, चलो दिस everything will be merged now. So your merge plant will be 255 lakhs. This will be 192.5 lakhs. 30 lakhs plus 20 lakhs आता तो है 50, बट 2 लाख और आपका मर्जर पे खर्चा हुआ है, तो वो होगा 52 lakhs. So 255 minus 192.5 माइनस 52, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10.5 lakhs। आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10.5 lakhs। समझ में आया? इतना सिंपल है। वी हैव ऑलरेडी डन वन क्वेश्चन ऑफ मर्जर इन द टेक्स्ट बुक, आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज इट। बस आपको याद दिलाना था कि एक लेवल पे लेके आना है। अगर क्वेश्चन में बोला होता फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी एट 90% लेवल, तो मैं क्या करता, मर्ज प्लांट की प्रॉफिटेबिलिटी अगर 90% पे मांगी है तो 70 को 90 पे लेके जाओ, 60 को 90 पे लेके जाओ और 90 पे दोनों को मर्ज कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर आपको मिल जाता है जो हम लोगों ने क्लास वर्क में किया है, जहां पे वी कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू 80%। पर यहाँ पे ऐसा कोई कंस्ट्रेंट था नहीं, तो मैंने 60 को कन्वर्ट करके 70 कर दिया। अब दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट आप निकाल सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्लांट ए प्लांट बी बिफोर मर्जर। अच्छा, यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन 45, यहां पे कंट्रीब्यूशन 15, तो यार 30 lakhs डिवाइडेड बाय 40 lakhs इनटू 150, ये आएगा 100 lakhs ब्रेक इवन पॉइंट। 100 lakhs ब्रेक इवन पॉइंट। इसकी फिक्स कॉस्ट 20 lakhs, 20 divided by contribution 15, 20 divided by contribution 15 into 90, 120 lakhs। और मर्ज प्लांट, अब देखो मर्ज प्लांट में क्या हो रहा है, 255 के सेल्स के सामने 192.5 आ रहा है, सो 62.5 is your contribution per unit. So 52 divided by 62.5 multiplied by 255, 212.16 lakhs हो गया आंसर। क्वांटिटी स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो पर यूनिट तो निकलेगा नहीं, तो आउटपुट ब्रेक इवन क्वांटिटी कैनॉट बी कैलकुलेटेड, ओनली वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड, सिंपल। तो आप एक टेबल बना लो, पर्टिकुलर्स ए 70%, बी 70%, मर्ज्ड 70%, ए का कॉलम सेम रहेगा, बी का बदलेगा, 60 से 70 हो जाएगा, मर्ज कर दो। सिर्फ ये नया पॉइंट था जो मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया था आपके साथ। 30 लाख की फिक्स कॉस्ट ए की, 20 लाख की फिक्स कॉस्ट बी की, लेकिन एडिशनल कॉस्ट ऑफ मर्जर भी दी है, तो 30 + 20 50 + 2 52 लेने का। मैंने क्लासरूम में ये पॉइंट डिस्कस किया था आपके साथ। तो ये हो गया आंसर पहले पार्ट का। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द मर्ज प्लांट टू ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 18 lakhs। पहले ये ढूंढ लो कि 18 lakhs प्रॉफिट कमाने के लिए आपको सेल्स कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो,
52 lakhs की फिक्स कॉस्ट मुझे पहले रिकवर करनी पड़ेगी, 52 lakhs की फिक्स कॉस्ट मुझे पहले रिकवर करनी पड़ेगी, फिर 18 लाख का प्रॉफिट आएगा। सो 70 lakhs मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। तो ये मेरा सेल्स आता है 285.6। अब ध्यान से सुनो, 255 कमाने के लिए 60% पे काम करना पड़ता है। 255 कमाने के लिए 60% पे काम, सॉरी 255 कमाने के लिए 70% पे काम करना पड़ता है। तो 285 के लिए किस लेवल पे काम करना पड़ेगा? 78.4%। सिंपल, इधर ही आंसर निकल रहा है यार। They did not ask for required sales, they asked me to find out capacity utilization for required sales. Are you getting me? So 255 lakhs merge था, वो 70% पे, तो मुझे 285.6 चाहिए, तो मुझे 78.4% पे काम करना चाहिए। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3, merger. Question number 4. Now this is about absorption costing versus marginal costing. इसका एक सम हम लोगों ने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में क्लास वर्क में किया है, बट मैंने सोचा एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। Question number 4. AB Limited produces a single product V2 and sells it at a fixed selling price of 2050 per unit. The production and sales is given as follows. Quantity sold and quantity manufactured दोनों दिया है। Okay. Actual and budgeted information for each month. एक यूनिट का डेटा है, 4 kgs you need for producing 1 unit and 120 per kg is the cost. So 480 per unit is your material cost, 360 per unit has to be your labor cost, 150%, so 540 per unit will be your, 150% is 540. So your total variable cost will be 480, 360, and then 540, 1380 per unit. 1380 per unit is total variable cost. Fixed production, fixed selling. There was no opening inventory at the start of the quarter. Okay. Fixed production overheads are budgeted at 6 lakhs per annum and absorbed on the basis of normal output of 60,000. So 60 lakhs is the budgeted fixed cost, 60,000 is the budgeted quantity. So rupees 100 per unit is your absorption rate. Profit statement as per absorption for all the 3 months, profit statement for marginal, and then reconciliation of these two. एक काम करते हैं, पहले quantity structure अच्छे से बना लेते हैं so that we will not go wrong anywhere. We have information about 3 months. We have information about 3 months. So basically this is your quantity structure. April, May, June. बराबर, April, May, June. Production 46, 44, 55. उसके पहले opening stock plus quantity manufactured. Quantity manufactured कितनी है? 4600, 4400 and 5500. 46, 44, 55. Correct. Minus
quantity sold. Quantity sold is 4,200, 4,500 and 5,200. That is what question has said, 42, 45, 52. Since we do not have opening stock, this is nil, but closing stock will be 400. Closing stock of first quarter will be opening stock of second, और 4800 में से 4500 बेचा, 300 is the closing stock, which is opening stock for June. So closing stock will be 600. This is what the quantity structure is. अब उन्होंने डिटेल में कॉस्ट शीट नहीं मांगी, तो हम लोग एक नॉर्मल स्टेटमेंट बना सकते हैं. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बोला है, तो आइदर यू कैन स्टार्ट विद कॉस्ट शीट फॉर्मेट ऑल्सो, इट डजंट मैटर, but this is statement of profit as per absorption costing, April, May, June. We will start with production cost. Either you can start with material, labor, variable overhead separately, or we can directly go for variable cost, which you calculated 1380 per unit. 1380 per unit. So 1380 per unit into quantity manufactured, 63.48 lakhs. $44, 60.72 lakhs and 5500 के लिए 75.90 lakhs. This is your variable cost structure. Fixed overhead absorption rate is 100 per unit. ये होगा, this will be 4.60 lakhs, this will be 4.40 lakhs, this will be 5.50 lakhs. So आपका cost of production कितना होगा? 63.48 plus 4.6, 68.08, 60.72 plus 4.4, 65.12, 75.9 plus 5.5, 81.4 lakhs. This will be your cost of production. अब cost of production के बाद you have to add opening stock, you are supposed to subtract closing stock value. अब opening stock और closing stock अपने पास है और मुझे पहले से पता है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए. How much is current year's cost of production? 1480. So 1480 multiplied by closing stock will give me closing stock value, and closing stock of April will become opening stock for May, and closing stock of May will become opening stock for June.
समझा? So 68.8 minus 5.92, 62.16 lakhs. 65.12, 66.6 lakhs. 81.4, उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो. 77.91, 67.55, 62.11, another 63.11, 62.16. This is your cost of sales. So we have got it, we have got the cost of sales, but this is not your actual cost of sales. This is based on your absorbed overheads. This is based on your absorbed overheads, where your stock is also valued at that cost. Please understand, you have not incurred fixed costs at the rate of 100 per unit. You have absorbed costs at the rate of 100 per unit. और हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 में मार्जिनल कॉस्टिंग के कि अगर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होता है तो दो तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है. एक, इधर ही एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर देते, उधर ही एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर देते, और दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट कर लेते. उसके लिए मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्सॉर्प्शन. देखो, एक्चुअल ओवरहेड्स 5 लाख था, लेकिन फर्स्ट ईयर में अप्रैल में 4,60,000 एब्सॉर्ब हुआ है, मई में 4,40,000 एब्सॉर्ब हुआ है, और यहां पे 5,50,000 एब्सॉर्ब हुआ है. बॉस 4600 यूनिट्स बनाओगे तो 4,60,000 एब्सॉर्ब होगा, लेकिन एक्चुअल खर्चा 5 लाख, एब्सॉर्ब किया 4,60,000. एक्चुअल खर्चा 5 लाख, you should have absorbed 5 lakhs. You have absorbed only 4,60,000. That means 40,000 is your under absorption. यहां पे भी 5 लाख खर्चा करके 4,40,000 ही एब्सॉर्ब कर पाए. दैट मीन्स 60,000 इज योर अंडर एब्सॉर्प्शन. बट बॉस, जून में 5 लाख का खर्चा करने के बाद 5,50,000 एब्सॉर्ब कर लिए. इसका मतलब देयर इज एन ओवर एब्सॉर्प्शन. So negative figure is over absorption, positive figure is under absorption. Under absorption मतलब कम चार्ज किया है. Under absorption मतलब कम चार्ज किया है. तो under absorption will be added, over absorption will be subtracted. 40-60 ऐड होगा, क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन है. कॉस्ट कम रिकॉर्ड की है, ज्यादा होनी चाहिए थी, मैंने कम रिकॉर्ड की है तो बढ़ाओ. और यहां पे ज्यादा है तो कम होनी चाहिए तो माइनस करो. सो दिस इज 63.51 lakhs. This is 68.15 lakhs, and this is going to be 77.41 lakhs. 6351, 6815 and 7741 is the cost. प्रॉफिट आएगा, सेल्स आएगा. अब सेल्स के लिए सेलिंग प्राइस दिया इन लोगों ने. सेल्स कितना है? 2050. अच्छा, 2050 इंटू क्वांटिटी सोल्ड 42, 45, 52, 42, 45, 52, 42, 45,
and 52. Balancing figure will be profit. $29 lakhs 19,000. 86.10 minus 63.51. 22.59 lakhs. 92.25, 68.15. 24.1. This is your profit after adjustment. 2259 lakhs, 2410 lakhs, 29 lakh 19,000. This is your statement of profit. चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो. This is your quantity structure. This is your cost sheet, rather profit as per absorption costing. पहले यहाँ तक देख लो. फिर ये बाकी का. समझा? अब मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग, अच्छा ये आपको चाहिए तो ये भी स्टेटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन भी देख लो, ये आपके रेफरेंस के लिए. चलिए, अब ऐसा है, दिस वाज प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन. प्रॉफिट एज पर मार्जिनल के लिए वो फंडा फॉलो करना पड़ेगा. क्या कहते हैं उसको? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. So this is statement of profit as per marginal costing. April, May, June. April, May, June. खैर सेल्स तो बदलेगा नहीं. सेल्स वी कैन पिक अप फ्रॉम हियर. 86.10, 92.25. 86.10, 92.25, 86.10, 92.25, 106.6. इसमें से माइनस होगी वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ लेंगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से माइनस होगी फिक्स कॉस्ट. अब फिक्स कॉस्ट जब लिखने जाओगे तो वेरिएबल फिक्स्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता. तो प्रोडक्शन सेलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोग डायरेक्टली उठा लेंगे 5,95,000. हम लोग डायरेक्टली उठा लेंगे 5,95,000. सो 5.95 तो हमको मिलेगा प्रॉफिट. समझा? So all we need is only one thing, and that is your variable cost of sales. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है तो वो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स ही होनी चाहिए. सो हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स. अप्रैल, मई, जून. आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट will be at the rate of 1380. ये देखो वेरिएबल पोर्शन.
तो यही वेरिएबल कॉस्ट आएगी और कोई दूसरी वेरिएबल कॉस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें यही वेरिएबल कॉस्ट लिखनी होगी। दिस इज योर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 1380 मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड। अब इसमें ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक और सब्ट्रैक्ट होगा क्लोजिंग स्टॉक। और आपको याद दिला दूं, इस बार क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी विल नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय 1480 क्योंकि हमारे यहां पे करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1380 है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको जब भी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, आप सिर्फ एक वेज कॉस्ट शीट बना लो। वेज कॉस्ट शीट मतलब वेरिएबल कॉस्ट शीट, सेम कॉस्ट शीट फॉर्मेट विदाउट कंसीडरिंग फिक्स कॉस्ट। तो मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक 1380 पे ही वैल्यू होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी एंड 600 यूनिट्स 8.28 lakhs। ओपनिंग अप्रैल में है नहीं, अप्रैल का क्लोजिंग मई का ओपनिंग, मई का क्लोजिंग जून का ओपनिंग होगा। 63.48 माइनस, so 57.96 lakhs। 60.72 plus 5.52 minus 4.14, 62,10,000। 75.9 plus 4.14 minus 8.28, 71.76 lakhs। Since there is no variable selling cost, you will pick up your total variable cost per unit from this only। यही होगी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। $86.1 minus 57.96, contribution is 28.14 lakhs minus 5.95, 2219 lakhs, 2219 lakhs, 92,25,000 minus 62,10,000 gives you 30,15,000 as your contribution minus 5.95, 24.2 lakhs. 106.6 lakhs minus 71.76 lakhs, 34.84 lakhs minus 5.95, 28.89 lakhs. This is your profit as per marginal. This was your profit as per absorption. और इनमें रीजन डिफरेंस आने का रीजन सिर्फ दो, एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर आप देख रहे हो तो आपने देखा होगा सारे खर्चे हमने रिकॉर्ड किए, सिर्फ
अमाउंट अलग हुई स्टॉक वैल्यूएशन में, बाकी सारे खर्चे सेम थे। फिक्स कॉस्ट हम लोग ने देखो वहां पे हमने फिक्स कॉस्ट एक साथ लिखी थी, यहाँ पे वेरिएबल यहां लिखी, लेकिन फिक्स कॉस्ट लिखी तो है, कंसिडर तो किया ही है। सो द मेन रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू प्रॉफिट फिगर्स is nothing but your stock valuation. So reconciliation of April, May and June. सबसे पहले profit as per absorption costing. Profit as per absorption costing 22.59, 22.59, 24.1, 29.19, 29.19। इसमें ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस ऐड होगा, अप्रैल में तो ओपनिंग स्टॉक ही नहीं था तो डिफरेंस भी नहीं आया। मार्जिनल में ओपनिंग 5.52 था, लेकिन एब्जॉर्प्शन में 5.92, तो 40,000 40,000 का डिफरेंस आया, 40,000 का डिफरेंस। और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 4.14, और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 4.44, ओपनिंग स्टॉक सॉरी 4.44। .3 lakhs मतलब 0.30 lakhs, 30,000। अच्छा, आपको याद होगा क्लोजिंग ऑफ अप्रैल बिकम्स ओपनिंग ऑफ मे, क्लोजिंग ऑफ मे बिकम्स ओपनिंग ऑफ जून, तो वो डिफरेंसेस भी वहीं से आ जाएंगे हमारे पास। बस क्लोजिंग स्टॉक का आपको अलग से निकालना पड़ेगा जून के लिए। 8.28, 8.88, 60,000। So यहां पे आपको मिलना चाहिए प्रॉफिट एज पर मार्जिनल। चेक कीजिए, 22.59 माइनस दिस 22.19 lakhs मिला। 24.1 ये हो जाएगा 24.2 lakhs। देख लो मार्जिनल का प्रॉफिट 24.2 lakhs, और ये 28.89 मिल गया। समझ में आया? मैं एक एक फ्रेम दिखा रहा हूं, मार्जिनल का दिखा देता हूं। दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग।
इसमें ये स्पेशल वर्किंग नोट थी अब हमारे लिए, वो उसका भी कैलकुलेशन देख लो। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ले ली, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया। देयर वाज नो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, तो यही मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड होते तो वो भी ऐड कर देते। एंड देन फाइनली रिकंसिलिएशन में लाइफ लॉन्ग यही रहेगा, एब्जॉर्प्शन टू मार्जिनल, एड ओपनिंग स्टॉक डिफरेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। दिस वाज योर मार्जिनल कॉस्टिंग। जेकेएससी, स्टडी मटेरियल और एमटीपी आरटीपी करो। मैंने मेजर पार्ट सम्स में कवर कर लिया है, बाकी तो हमने क्लास वर्क में ऐसे भी किया है। नोट्स लिखवाए मैंने, जस्ट फॉलो दोज नोट्स। समझ में आया? चलो, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।